السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جمعے کے دن مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے مجھے بولنے کی اور پھر سمجھانے کی، پھر ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے جمعہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں تک پہنچا کہ جب فرعون نے بولا تھا چلو مقابلہ کریں گے، وہاں تک گئے۔ پچھلے جمعہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ اب آگے سے بیان کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت لاڈلے پیغمبر، اور قرآن میں جس کا نام زیادہ آیا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن میں جگہ جگہ اے موسیٰ 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 موسیٰ، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ بار آیا نام موسیٰ علیہ السلام، اور ان کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ بہت جگہ میں مختلف انداز میں بیان کرتے آیا۔ جب نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کو، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے یاد کے لیے نماز پڑھو، میرا ذکر کرو، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے باتوں میں نہ آنا، ان کے ساتھ نہ رہنا۔ اور بولے جاؤ فرعون کے دربار میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بولے یا اللہ میرے سے قتل ہو گیا ہے، میں کیسے جاؤں، وہ مجھے قتل کر ڈالے گا۔ اللہ نے بولا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم نہ دیکھتا بھی ہوں اور تمہارے ساتھ بھی ہوں، اور تم نہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں گئے اور بولے میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور میں اللہ کی طرف دعوت لے کے آیا ہوں، دین حق۔ جس نے اس حق کی دعوت کو قبول کیا اس کے لیے رحمت ہے، جو انکار کریا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بولے ہمارے بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، اس کا عذاب کرنا چھوڑ دو، اس کا آزاد کر دو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ فرعون نے نہ مانا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بولے وہ رب جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، تمام جہان کو پالنے والا رب ہے، اکیلا بارش برساتا ہے، پودے اگاتا ہے، طرح طرح کے سبزیاں پھل پھول پیدا کرتا ہے، اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بول کے بولے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر بھی وہ نہیں مانا اور دھمکی دینے لگا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون نے کیا بولا؟ فرعون نے اے موسیٰ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بولے اگر میں دلیل بتاؤں گا تو تم مانو گے کیا؟ جب فرعون نے بولا کیا ہے وہ دلیل بتاؤ بولے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت دی، جب 2 معجزے دیے، وہ 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بتائے۔ پھر بتانے کے بعد بھی اس نے جھٹلایا اور بولا یہ جادو ہے، تم جادوگر ہے، تمہارے جادو سے ہم نہ ہماری شہر سے نکال ڈالنا کو تمہارا کا پروگرام بنا پائے تو بول۔ اب اس کے بعد مقابلے کے لیے تیار ہوتا۔ تو اب جادو سیکھ کو آیا نا، جادو کرے نا ہمارے سامنے، میں تیرے سے طاقتور جادوگروں کو لے لے گا، تیرے مقابلے میں کھڑا کر کے تجھے ہراتا ہوں بولتا فرعون۔ اور فرعون بولتا کب کیا ہو بول، یہ مقابلہ کو بولے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولتے جو اس ٹائم پہ فرعون لوگوں کا ایک عید رہتا تھا، وہ عید کا دن میں پروگرام رکھیں گے وہ بولتے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بھی پروگرام کا کھلے میدان میں ہونا، سب جنوں دیکھتے رہنا، وہی سب
वैसा खुले मैदान में ये मुकाबला होना को बोलते मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा को बोलता। अब इधर फिरौन ने उसका हुकूमत पूरा इख्तियार करता और इसका पावर पूरा बरतले को यूज करने को, इसका पावर पूरा बतलाने को, दुनिया में है सो सबसे ज्यादा उस टेम्पो है सो ताकतवर जादूगर सबको जमा कर लेता एक मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कि ते जना को जादूगरा को ले लेगा को ताकतवर जादूगरा को मुकाबले का वास्ते खड़ा करता, आओ मेरे तरफ लड़ोगे बोल को। अब वो मुकाबले का दिन आ गया, अब मैदान में आए, इधर फिरौन का लश्कर आया जादूगरा, इधर देखे तो मूसा अलैहिस्सलाम है और हारून अलैहिस्सलाम इधर है सो दोनों चे। अब ये मुकाबला शुरू हुआ। कैसा? वो लोगों ने सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम लाठी से सांप बनाते हैं, हमें क्या करेंगे, लाठी से भी सांपा बनाएंगे, रस्सी से भी हमें सांपा बनाएंगे। वो बोल को वो जादूगरा लकड़ी भी ले लेकाले, लाठी भी ले लेकाले, इधर रस्सिया भी ले लेकाले। अब वो लगा जब मैदान में आए जादूगरा, इसमें 40 जादूगर आए को बोल को है, लेकिन अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने कितने लोग आए। एक मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इतने लोग को लेके आया फिरौन। अब वो लोग पूरे डर रहे थे जब मुकाबले के वास्ते मैदान में आए, तो जब सामने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम खड़े तो ये जादूगर डर गए, अगर मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हुए, रसूल हुए तो हमारा हाल क्या होगा। जब वो लोग डर गए तो एक कोने में जमा हो गए, पूरे जादूगर जमा हो को बोले भाई क्या करेंगे, अगर वो सच्चे रसूल हुए तो अल्लाह की मदद उनकी तरफ हुई तो मूसा की तरफ है, हम बर्बाद हो जाएंगे, क्या करेंगे। बोले तो ये लगा बात कर लेते फिरौन के पास जाकर पूछते, अगर हमें तो ये जीता है तो क्या आता, हमने बदला क्या मिलता। वो बोल फिरौन बोलता कि तू ना बहुत अच्छा बदला दे तो मैं तुम ना होदे दे तुम मेरे दरबार में को बोलता। या इलेक्शन क्या भी नहीं सर का सिलेक्शन होता है, ये लगा को होदे दे तुमको बोल को बोलता है, ये हिरिस में आ जाओ को लगा, वो डर को मिटा डाल को सब भी फिर को मिल को। अब हमें डरते हैं लेकिन सामने मूसा को नहीं मालूम होना हमें डरते हैं को बोल को, ऐसा नहीं सर का, ये लगा दोनों जादूगर आचे, ये लगा को नबिया को बोल को हमें समझेंगे ना को, ऐसा समझे तो हमारे अंदर डर आता है। ये दोनों को, मूसा को और हारून को भी हमें जादूगरा समझेंगे, जादूगरा समझ को अब ये लगा का मुकाबला करेंगे, डरे नहीं सर का, हमें हमारा डर बाहर पड़े नहीं सर का, हमें ये लगा से मुकाबला करेंगे, कर को हमें जीतेंगे, वो लगा को हराएंगे, हरा को हमें होदे ले लेंगे। फिरौन के पास को बोल लेते लगा, बोलते कि ये दोनों जादूगरा या इसलिए आए कि हमारा बाप दादा का खूबसूरत दीन को ये लगा निकाल डालना को समझते हैं उनको। अब वो जादूगर देव कितने बेवकूफ की, असल या मूसा अलैहिस्सलाम सच्चा दीन लेने का है तो ये दीन को नहीं को बोल को लगा कि बाप दादा दीन को खूबसूरत दीन को बोल को बोलते हैं, बेवकूफा। फिर अब उसके बाद बोले कि लोगों को ये दोनों जादूगरा या इसलिए आए कि तुम लोगों को सबको ये शहर से निकाल डाल को ये लगा हुकूमत चलाना को आए को बोल के बोलते। अच्छा, बिलाखिर मुकाबला शुरू हुआ, वो लोग सामने आए, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आए और बोले, ए मूसा पहला वार तुम करते या मैं करना को बोल के पूछे जादूगरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले तुम करो, पहला वार क्या करते की को बोलो। अब यह मूसा अलैहिस्सलाम बोलने के बाद जादूगरा सुने ना ऑलरेडी पहले लाठी से मूसा अलैहिस्सलाम सांप बनाते हैं को, ये लगा लाठियां भी ले निकाले, रस्सियां भी ले निकाले, रस्सियां ले निकालो को सब भी कितने जरो है तो जादूगर आए कि वो लगा सब भी एक ही दम है मैदान में जादूगर को दिखाई, क्या जादू, रस्सियां फेंके, लगड़ा फेंके तो सांप बन गया, सांप बन जा को। अब यह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है लोगों को ऐसा लगा तो क्या हकीकत में वो सांप नहीं, रियलिटी में वो सांप नहीं, ये आंखों का जादू कर दिया, वो जादू रियलिटी में वो सांप नहीं लेकिन जादू करे वो लगा, उसके वजह से सब लोगों को ऐसा लगता है कि वो सांप को बोल को वो लगा को दिखता है लेकिन हकीकत में वो सांप नहीं को बोल कर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है। वो आंख धोखा कर डाल को, आंखें धोखा कर डाल को, जादू कर डाल को वो सांप के बना डाला, लोग सब धोखे में आ गए। सांप इधर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ते हैं तेजी से, बहुत स्पीड वाले मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की तरफ जाते हैं सांप। इधर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डरा गया, कहीं को डरा गया, इन्हों जादूगर नहीं होने से ना को डराया, इन्हों जादूगर हो को रहना है तो इन्हें करा मैं हबे करता हूं, हबे जादूगर को लगा सांपा को सबको भिजा डालता, नहीं तो हबे कोस के कर को लगा वो डरातूंगा तेसो। लेकिन यह मूसा अलैहिस्सलाम में जादूगर नहीं रसूल है होने से ना के अंदर डर पड़ गया, डराया। जब अल्लाह ताला क्या बोला, ए मूसा डरना मत,
आज का मुकाबला में जीत तेरी ही होती, मैं तेरे साथ है को बोलते अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम तसल्ली देते। और उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को, ए मूसा जो तेरा लाठी है ना वो दाएं हाथ से जमीन पे मार को बोल को अल्लाह हुक्म देता। जब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम है अपनी लाठी ले को सीधे हाथ से दाएं हाथ से जमीन में मारते। जब ये सांप बन जाता, ये हकीकत में सांप बन गया, हकीकत में सांप बन जाता मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का। वो ये एक सांप है, सामने कितने हैं तो सांप आते हैं जी, वो हर एक सांप को निकल लेते चल जाता, निकल लाता। ये एक सांप है। कब्बे तो ये मंजर जादूगरा देखे कि और दरबार में खुले मैदान में पूरे लोग देखने लगे कि जादूगरा एक ही एकदम है, फौरन है एक एकदम नीचे पड़ जाओ सजदे में चले गए जादूगरा। कहीं को गए ऐसा, वो लोगों को मालूम हुआ मूसा अलैहिस्सलाम है सच्चे नबी, मूसा अलैहिस्सलाम है सच्चे रसूल अल्लाह के। अब आज किसके तरफ है अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ है को बोल को जादूगरा को भी मालूम हो गया। डर गए, डर जा को लगा को यकीन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम है सच्चा रसूल है सच्चे नबी को बोल को लगा को यकीन आ जा को पूरे के पूरे एक जनो दो जनो भी नहीं कितने जनो आएगी वो लगा पूरे सजदे में पड़ गए। सजदे में पड़ जा को क्या कहते हैं मालूम, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम ईमान लाते हैं अल्लाह के ऊपर, उस अल्लाह के ऊपर जो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के नहीं, जो मूसा और हारून का रब है, उस रब के ऊपर हम ईमान लाते हैं को बोले। फौरन मुकाबले से पहले मशवरा कर लेते हैं कोने में जमा हो को क्या करेंगे, हमें होदा मिलता, ये होता वो होता हो को। लेकिन जब आंखों से ये देखे, जब मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी सांप बन को लोगों को सांपों को खाना, फौरन मशवरा नहीं, क्या नहीं, किसी भी क्या बात करे नहीं, फौरन सबके सब सजदे में पड़ जाओ ईमान लाए अल्लाह के ऊपर। और सबके सामने खुले मैदान में इकरार करते हैं हमें ईमान लाए, हमने यकीन आ गया मूसा और हारून दोनों अल्लाह के सच्चे नबी सच्चे रसूल है दोनों को बोल को खुले मैदान में ओपन रोड में बोल डाले सबके सामने जादूगर। अब ये लगा ये कई को बोले, ये लगा भी बोले जाना, ये लगा भी दूसरा जादूगर को डराए जाना मूसा अलैहिस्सलाम को। कई को ऐसा डराए नहीं सरका, फौरन कई को गिर गए सजदे में, कई को ईमान लगा ले लगा। कई को लाए गए तो जिस फील्ड का जो माहिर होता है, अब एक फील्ड में एक एक जना एक फील्ड में एक्सपर्ट होता। अब एक जना अब एक घर बनाने में एक्सपर्ट होता, अब एक जना लोहे का काम करने में, आयरन के काम में, अब एक जना बाइक मैकेनिक के, कार मैकेनिक के, वैसा हर एक जना अपना अपना फील्ड में एक्सपर्ट होता। वो एक्सपर्ट को मालूम होता कौन सा सही कौन सा झूठ करने का। अब ये जादूगरा पूरे ये जादू के फील्ड में है, ये लगा सबसे ताकतवर जादूगरा फिर ले लेकर आया सो। अब ये लगा को मालूम, ये लगा पूरे एक्सपर्ट है, लगा को मालूम ये जादू नहीं रे बा, ये मूसा लाठी को सांप बना को हमारे तरफ भिजाया सो, वो सांप हमारे सांपों को खा डालना, ये जादू नहीं, ये जादू है तो हमने मालूम हो जाता, हमें इससे बहुत ताकतवर जादूगर है, हमें बड़े जादूगरा को बोल को लगा को मालूम होने से वो लगा एक्सपर्ट हो फील्ड में जादू में होने से वो लगा को मालूम हो गया भाई ये जादू नहीं ये हकीकत है। आज इस दिन आज इस मौके पे अल्लाह मूसा की तरफ है को बोल को लगा को मालूम हो गया। होने से वो लगा फौरन सजदे में पड़ गए, असल किसी भी मशवरा नहीं क्या भी नहीं। अब जब ये लोग पूरे देखने लगे तो लोगों को भी मालूम हो गया मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी सच्चे रसूल को बोल को। इसके बाद फिरौन गुस्सा आ गया, फिरौनगढ़ को गुस्सा आ जाको उन बोले कि तुम्हें मेरे इजाजत के बगैर तुम्हें ये लोगों के ऊपर ईमान कैसा लाए बोलो। अब वो जादूगरों को डराता है फिरौन, मेरा परमिशन नहीं सर का तुम्हें, फिरौन का परमिशन नहीं सर का तुम्हें, मेरी परमिशन नहीं सर का, मेरी इजाजत नहीं सर का तुम्हें मूसा के ऊपर ईमान कहीं को लाए, मूसा के रब के ऊपर कहीं को ईमान लाए, मैं तुम्हारा रब को बोल को ये डराता है। डरा को अगर तुम्हें पीछे नहीं हटे करते तो मैं तुम्हारे एक एक बॉडी पार्ट को काट को खजूरा के थनों के ऊपर लटकाता हूं, सख्त अजाब देता हूं, तुम ना लगा को बोल को बोलता डराता फिरौन। ये जादूगरा क्या बोलते फौरन तू क्या है तो भी कर ले, हमें पीछे हटते नहीं, हमें अभी अल्लाह के ऊपर ईमान ला डाले, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमाए को बोल के बोलते लगा। कई को अबे या सच्चे नबी के मुकाबले में आंखों खड़े हो गए लगा मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के वास्ते। ये भी कितना बड़ा गुना,
मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आको खड़े होना भी कितना बड़ा गुना। इसमें ये मालूम होता है कि हक के रास्ते में जो भी है उसके सामने आको खड़ा होना मुकाबले के वास्ते ये भी बहुत बड़ा गुना होने से बोला ये भी बोलते हैं अब हमें ईमान लाए, कई को ईमान लाए, हमारे पिछले तमाम गुना अल्लाह माफ फरमाए, जो तूने हमारे हमना बरकले को तू हमना यूज कर ले को तू मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा करे, तू जो सच्चे नबी सच्चे रसूल है इना के मुकाबले में आको हमने खड़ाया, तू करो जादू को बोल को तेरे वजह से हमें वो करे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी ये गुनाह को माफ फरमाए। कई को एक बार ईमान लाने के बाद तमाम पिछले गुनाह को अल्लाह ताला माफ फरमा डालता होने से वो लगा वो बात बोले सो अब तू क्या करना है तो भी वो कर ले, हमें पीछे नहीं हटते वो बोल लगा तू हम ना हुकूमत दे तो वो दे तो ये दे तो वो बोल कर लालच दिया, लेकिन जो अल्लाह देता वो तू कितना दिया तो भी उससे बहुत ज्यादा, तो कितना दिया तो भी कम है अल्लाह देता उसमें। आज तू दुनिया में क्या है तो भी कर सकता कि कर ले, दुनिया में तू कर सकने का, आखिरत में जो है वो अल्लाह देने वाला है। अब हमें पीछे हरगिज नहीं हटते को बोल को लगा पूरे एक ही बारे ये बात बोले पूरे लोग। अब ये बात बोलने के बाद फिरौन का गुस्सा और चढ़ गया को तुमने लगा को सूली पे लटका तो मैं को बोल को बोलता फिरौन अब वो लगा बोलते फिर को तू क्या करना है तो भी कर ले, अल्लाह हमना ये दुनिया के बदले में जन्नत देता, हमना जन्नत होना तो क्या है तो भी कर ले, हमें पीछे को नहीं हटते को बोलते। जब फिरौन क्या करे वो सब जादूगरों को ले लगाया ना, ये लगा कि वो क्या बोलता है मालूम, ये लगा पूरे कितना बोलते तो पीछे नहीं हटते को बोल को। असल में मूसा तुम्हारा अमीर तो क्या तुम्हारा टीचर है, मूसा तुम्हें लगा स्टूडेंट सा, ये पूरा मुझे धोखा कर को मेरे लोगों को धोखा करने के वास्ते तुम्हें लगा ये सब भी करे सो बोल को बोलता है फिरौन। लेकिन हकीकत में वो झूठ है। फिरौन नीचे मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के वास्ते कितने बड़े ताकतवर जादूगर को एक्सपर्ट को नीचे जमा कर को ले लेकर आया, लेकिन क्या बोलता है अजय तुम्हें इसके स्टूडेंट सा मूसा के स्टूडेंट सा तुम्हें लगा सब भी मिलको चे प्रोग्राम बनाए से मुझे मालूम को बोलता है, लेकिन उसे भी मालूम ये झूठ बोलता है को बोल को। ऐसा कई को बोलता है कहते तो इसकी इज्जत बचाने के वास्ते, कई कहते पूरा खुले मैदान में होता है, ओपन ग्राउंड में होता है, पूरे लोग मिस्र के लोग जमा हो गए, कितने लोग सबके सामने होता है, जादूगरा ईमान ला डाले। अब ऐसा होता है होने से उन्हें ये इल्जाम लगाया मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। अब इसके बाद जादूगरा हटना नहीं को बोल को फिरौन गाड़े कितने तो जादूगर है कि वो लगा सबको कत्ल कर डाले, कत्ल कर तुमको बोल को बोले ना सबको कत्ल कर डाले फिरौन गाड़े। अब इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी देता है तुझे भी मैं कत्ल कर दूंगा बोल को फिरौन, तू बाज नहीं आएगा तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा बोल को मूसा अलैहिस्सलाम को भी धमकी देता है। इसके बाद ये मुकाबला हार गया इन्हें। अब इसके बाद लोगों में दीन फैलता है, लोगों को मालूम हुआ कौन सा सच्चा दीन है को मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी सच्चे रसूल को बोल को लोगों को मालूम हुआ। थोड़े थोड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम में दाखिल होते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाते हैं। अब ये देख को फिरौन हबी जलने लग गया, हबी जल जाता है फिरौन को इधर। अब इन क्या बोला, अब ये मूसा अलैहिस्सलाम को कब है तो ये इधर बोला कि कत्ल कर दूंगा बोल को। वो फिरौन की दरबार में से एक जना है उन ईमान लाया सुने, इतना इसमें भी 3 जनों है ईमान लाते सुनो। ये के मूसा अलैहिस्सलाम को पहले वो दरबारी आको बोलता सो ये कत्ल करने के फैसले हुए तू चल जाए ऐसी को बोल। दूसरा फिरौन की बीवी हजरत आसिया ये लोग ईमान लाए। और तीसरा कौन मानो उसके दरबार में एक जना रहता नजीक वाला, उन भी ईमान लाए, लेकिन वो ओपन कराया नहीं, उन्हें बाहर को बताया नहीं ईमान लाएंगे बोल को। ये तीनों ईमान लाए सो पहले। अब इसके बाद कौन भी ईमान लाए नहीं वो उस टाइम पे। अब इसके बाद वो उसमें से दरबारी में से एक जना बोला मूसा को तू कई को कत्ल कर दूंगा है जो सच्चा दीन लेकर आया, तेरे सामने दलील ले लेकर आया, प्रूफा ले लेकर को तेरे सामने कितने मोजिज़े बताया, तू जादूगरासी भी सब भी कराया, क्या तू उस अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हो तो सच्चा खुदा सच्चा अल्लाह की तरफ बुलाते हो तो दीन की तरफ है, तू इसलिए उसको कत्ल करता क्या? ये हकीकी राह बताने वाला सीधा रास्ता बताने वाले को इसलिए कत्ल करता है क्या? वो ये सीधा रास्ता बताता है वो बोल को कत्ल करता है क्या को बोल को बोलते। अब बाद में इन कैसा है तो भी मानता नहीं को बोल को, मानता नहीं है को बोल को इन जाहिर कर डालता, इन ओपन हो जाता मैं ईमान लाएंगे बोल को मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर है और अल्लाह के ऊपर ईमान लाएंगे बोल के इन ओपन हो जाता वो दरबारी में एक जना। अब इसके बाद है उन हबी गुस्सा जड़ जाता, गुस्सा जड़ को उसे भी मन मारना को बोल को
फिक्स हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उसे बचा लिया, अल्लाह ताला उसे बचा डाला। उन कर लिया फिर ने इसे भी मन मार डाला को बोल को, लेकिन अल्लाह ताला अपनी फजल और करम से वो आदमी को भी बचा लिया। अब इसके बाद हबी ईमान लाते हुए लोगों को बोल को, बनी इसराइल है ना, ये लोगों के ऊपर अजाबा ज्यादा करवा लिया, हबी हबी जुल्म ज्यादा करवा लिया फिर ने इन लोगों के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर। अब इस टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल की तरफ जाकर बोले अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह जो तुम्हारा मददगार है, तुम्हें सबर करो, सबर से काम लियो तुम्हें, वो बोल को बोलते। और जब एक कौम है क्या बोलती है जवाब में, ए मूसा तू आने से पहले भी हमें ये आजमाइश में है, हमारे ऊपर ये अजाब है, तो आने के बाद भी हमारी हालत ये अच्छे, तो आपको हमने क्या भी बदला है सो क्या भी नहीं, हमारे ऊपर ऐसा अजाब है, वो बोल को ओलागा बोलते। जब मूसा अलैहिस्सलाम बोलते नहीं नहीं तुम्हें ऐसा बोलना नको, तुम्हें ऐसा बोले नहीं सरकार, अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह जरूर भी जरूर तुमने लगा को ये मुसीबत से निकाल डालता, मुसीबतों से निकालने वाला अल्लाह एक जना चे को बोलते दावत देते, दावत दे को बोलते तुम्हें लगा अबे बाहर ओपन होने, अबे ये लगा नमाजा पढ़ सकते नहीं होने से क्या बोले मूसा अलैहिस्सलाम में, फिरौन को मालूम हुआ अगर ओपन होने नमाज पढ़ते हैं बोल को लगा सबको कत्ल कर डालता फिरौन होने से मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि तुम्हें लगा घर में अंदर अंदर ही छोड़ो, नमाजा पढ़ो, नमाजा माने छोड़ने की इजाजत नहीं है, नमाजा अंदर अंदर पढ़ो, घर में बैठ को, ओपन ग्राउंड में नहीं सरका, बाहर मस्जिदों में नहीं सरका को बोल को बोलते मूसा अलैहिस्सलाम है। और इसके बाद तुम्हें लगा सबर कर को, अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह जरूर भी जरूर है तुमने लगा को हुकूमत देता। अब ये लगा फिरौन है ना, ये लगा कि हुकूमत को तबाह बर्बाद कर डाल को, तुमने लगा को हुकूमत देता करीब है, लेकिन तुम्हें सबर से काम ले बोल को बोलते या मूसा अलैहिस्सलाम है। अब इसके बाद और ज्यादा आजमाइश हो जाती बनी इसराइल के ऊपर, इलाका के ऊपर और ज्यादा जुल्म सितम करता इन फिरौन। अब अल्लाह ताला थोड़े अजाब इन लोगों के ऊपर नाजिल फरमाता। वो क्या वो करते तो सबसे पहले खेती उगना बंद हो जाती, खाने का पैदावार खत्म हो जाता, कैद का जमाना पड़ जाता, कहत का जमाना। उसके बाद वो लोग आको बोलते ए मूसा अगर तू अल्लाह से दुआ कर को हमना ये मामूल कर डाला गए तो हमें तेरे ऊपर ईमान लाते को बोल। मूसा अलैहिस्सलाम अच्छा वो बोल अल्लाह के दरबार में दुआ करे तो वो कैद हट जाता। और उसके बाद वो लगा फिर को ईमान लाते नहीं, झूठ बोलते वो लगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या करता, पानी को रोक लेता, वो लगा कर पानी नहीं सरका, पानी को रोक लेता। फिर वो लगा आको मूसा अलैहिस्सलाम के पास ही बोलते ए मूसा तू अल्लाह से दुआ कर को हमारा ये अजाब हलाटे हटाया तो हमें जरूर ईमान लाते को बोल को बोलते। जब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर को हटाए तो फिर कोई ईमान लाते नहीं। फिर बाद में और एक अजाब है टिड्डियों का, जो उना के खेतों के ऊपर है टिड्डिया आ जाको, वो लगा खेतों को सब कुछ तबाह बर्बाद कर डालते सो टिड्डिया। और वो किसके ऊपर करती सो, खाली फिरौन के इसमें से, बनी इसराइल के कौम के जंगला में क्या भी नहीं होता सो। ये देख को फिर को आको बोलते मूसा बोल तू अल्लाह से दुआ करे हमने ये अजाब टल जाना को बोल को, टल गया तो माने हमें जरूर ईमान लाते को बोल को बोलते। कबे तो अजाब टल जाता कि ईमान लाते नहीं, फिर को झूठे बात आज फिर को अल्लाह ताला अजाब देता। क्या वो अजाब है, तूफान आता, पानी आ जाओ को, फिरौन के कौन कौन है तो वाले रहते कि वो लगा के हर एक घरा में भी तूफान आ जाता, घरा को डुबा डालते रहता वो पानी। लेकिन कौन है तो बनी इसराइल वाले रहते कि वो लगा कि घरा को क्या भी करता नहीं वो तूफान। फिर को आको मूसा अलैहिस्सलाम से बोलते ये मूसा अल्लाह से दुआ करे ये अजाब हट गया तो हमें ईमान लाते वो बोलते। फिर को मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करे तो ये लगा ईमान नहीं लाते। और इसके बाद जो ये लगा कि खाने के वास्ते फल रहते ना, वो फलों में कम कर डाले अल्लाह, बरकत कम कर डाले, कम कर डाल को। झाड़ों के ऊपर कितने फला रहने का, एक दो फलात रहते सो कैद पड़ जाता। फिर को आते फिर को बोलते ये मूसा अल्लाह से दुआ करो, फिर को दुआ करो का अजाब को डाला है तो फिर को पैसा हो जाती, ईमान नहीं लाते। अब सबसे बड़े सख्त अजाब है अब आखिरी के दो, मेंढक का अजाब है। किधर देखे तो भी फिरौन लगा के कौम में मेंढका नजर आते सो, फ्रॉग्स मेंढका कहा है तो भी ये लगा खाने के वास्ते क्या तो पकड़े तो मेंढक बन जाता सो जाने के तो कहा है तो भी मेंढक है। ये लगा के घरा में खाली फिरौन के घरा में चे, बनी इसराइल के घरा में क्या भी नहीं है साजाब है। वो लगा अल्लाह के बंदे होने से वो लगा की तरफ क्या भी नहीं, ये लगा की तरफ। और इससे बड़ा अजाब एक है खून का अजाब है। दरियाए नील जो पानी का है समुद्र है, उसमें ये लगा कब है तो फिरौन के दरबारे वाले क्या, फिरौन के कौम वाले क्या पानी पीना को बोल को
पानी ले लेते हैं तो वो पानी खून बन जाता सो। ये सबसे बड़ा अजाब है, इन सब अजाबों में सबसे बड़ा अजाब है, खून बन जाता सो। लेकिन वो दरिया सी बनी इसराइल पानी लिए तो पानी का पानी छाता सो। इतना पूरा हंका से देखने के बावजूद भी ये लगा अल्लाह के ऊपर ईमान लाई नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाई नहीं, बदबख्ता। इतना देखने के बाद भी इतने अजाब दिया अल्लाह ताला और हटा को बताया, फिर भी ये लगा ईमान लाई नहीं। ये आखिरी अजाब ये लगा ऊपर आजमाइश का खून होना। अब ये लगा बनी इसराइल का नहीं जाको हमें तुम ना पैसे देते पानी दियो वो बोल को बोलते सो। अच्छा वो बोल को बनी इसराइल वो लगा पानी ले को फिरौन के दरबारे वाले को पानी ऐसे डाल दे तो खून बन जाता सो। लेकिन ओज पानी को ओज खून को ये लगा फिर को पकड़ लेते बनी इसराइल वाले, पानी बन जाता सो। अब इतना बड़ा अजाब दिया अल्लाह ताला लगा के ऊपर। फिर ये इतना सख्त अजाब के बाद भी ये लगा बाज नहीं आए, अल्लाह के ऊपर ईमान ना लाए, तो अल्लाह ताला ने एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाया, हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को? कौन कौन है तो ईमान वाले है कि हमारे ईमान वाले को सबको जमा कर ले को तुम ये शहर छोड़ को चले जाओ बोल को अल्लाह ताला बोलता। रातों रात चले जाना, सुबह को नहीं, अब कभी छे रातों रात चले जाना को बोल अल्लाह हुक्म देता। मूसा अलैहिस्सलाम वैसा चे सब ईमान वाले को जमा कर को बोलते, अल्लाह को हुक्म आ गया अब हमें रातों रात यहां से निकलना को बोल को। अच्छा को बोल को पूरे लोग जो ईमान लाए वो लगा और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम सब रातों रात निकल जाते। इधर फिरौन को मालूम होता नहीं, ये लगा निकल गए। सो जब सुबह हुई तो मालूम होता फिरौन को, ये लगा पूरे चले गए को, ये लगा पूरे चले गए तो मैं हुकूमत किसके ऊपर चलाना, मेरा जुल्म सितम किसके ऊपर करना मैं। चलो ये लगा के फीचर को बोल को पूरा लश्कर को तैयार कर ले को फिरौन गाड़े मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के पीछे चल जाता। अब उधर मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में जाते रहे तो रास्ता भूला डालता अल्लाह ताला, अल्लाह रास्ता भूला डाल को दूसरा रास्ते तो फिरा डालता। अब उधर गए तो सामने गए तो एक बड़ा समुद्र आ गया, पीछे फिर को देखे तो फिरौन है उसका लश्कर आता है, सामने एक बड़ा समुद्र है। जब ये मंजर देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ये लगा बोलते कि मूसा पकड़े गए, हो गया हमें, बर्बाद हो गए, हमें खत्म हो गए आज। सामने देखे तो बड़ा समुद्र है, समुद्र में गए तो भी मर जाते, नहीं को बोल को इधर बचे तो पीछे देखे तो फिरौन है उसका लश्कर आता है, दो तरफ भी हमें बच नहीं सकते, मर गए को बोल को बर्बाद हो गए, खत्म हो गए हमें को बोल को बोलते। जब मूसा अलैहिस्सलाम बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह मुझे मदद करता, मेरा अल्लाह कोसा के एक रास्ता मुझे अल्लाह खोलता, मुझे पता रहा है, मुझे यकीन है अल्लाह रास्ता बताता। आज इतना दूर लेने का आया सुने हम ना, कहीं को मरवाना है तो आज मैंने मारने खुरमाता अल्लाह, इतने दूर लेने का आया, तुम ना लगाओ कि यकीन नहीं, लेकिन मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे कोसा के एक रास्ता खोलता अल्लाह को बोल के बोलते मूसा अलैहिस्सलाम। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह वही फरमाता, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोलता क्या को हे मूसा तेरा लाठी लेको उस समुद्र में मार को बोल को बोलते अल्लाह। जब लाठी लेको मूसा अलैहिस्सलाम को मान ली वो लाठी से क्या क्या करना करने का, लेकिन यह अल्लाह के हुक्म से होता है, या मूसा अलैहिस्सलाम में चाहकर वो मारे तो भी कुछ भी नहीं होता, अल्लाह चाहे तो वो पूरे मौजूदे इनके हाथों के ऊपर होने का। अब अल्लाह हुक्म देने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम में लाठी ले को हाथ में समुद्र में मारते। कब है तो समुद्र में मारे कि समुद्र में रास्ता खुल जाको, पानी रहता ना, ये पानी पूरा अलग हो जाको, पानी का पूरा एक पहाड़ बन जाता, पानी पूरा एक पहाड़ के जैसा बन जाको, उधर इधर है बीच में रास्ता खुल जाता समुद्र में। ये बहुत बड़ा मौजूदा मूसा अलैहिस्सलाम का, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें लाठी मारे तो इधर है अल्लाह के हुक्म से पूरा पानी है तो वो पानी के बीच में जगह बन जाता, रास्ता बन जाको, ये इधर इधर साइड सा रहता ना, ये दो साइड भी पहाड़ जैसा पानी टिक जाता, रास्ता खुल जाता बीच में। अब इसमें से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता अल्लाह ताला, ये मूसा तू और मेरे कौन है तो बंदे ईमान लाए की वो लगा पूरे रास्ते से उधर निकल जाओगे बोल कर अल्लाह हुक्म देते। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और कौन कौन है तो ईमान लाए के बनी इसराइल है, वो रास्ते में से निकल जाते। अभी पीछे से ये फिरौन दिखता है, ये पूरा मंजर है, फिरौन दिखता है। अब इनका अब तो डरना, इतना होने के बावजूद भी उन डरना, डर को ईमान लाना, लेकिन उन डरता नहीं। डरे नहीं सर का क्या कहता मालूम, देखेंगे ये लगा सही सलामत बाहर चले गए तो हमें भी रास्ते में चलेंगे बोल को बोलता फिरौन गड़े। अब ये लगा कि पीछे चीन भी आ जाता फिरौन है। अब उधर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आखिरी शख्स कौन है तो है कि उधर बाहर जाने वाला, और इधर कौन है तो इधर फिरौन का आखिरी शख्स कौन है तो है कि जब उधर आखिरी वाला कौन है तो इंसान रहता कि उन बाहर चले जाता कि इधर फिरौन का पूरा लश्कर आ जाता है रास्ते में से,
रस्ते में से आगे टेम्पो, उधर कौन है तो मूसा अलैहिस्सलाम के सब भी पार हो गए को बोल को हुआ कि सबको अल्लाह ताला हुक्म दे डालता, पानी को हुक्म दे डालता, अब तुम्हें मामूल हो जाओगे बोल को। अब वैसा पानी पूरा फिर को मामूल हो जाता। ऐसा फिरौन और उसका पूरा लश्कर है समुद्र में हलाको बर्बाद हो जाता। जब ये मौत का गरगरा हुआ तो या मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करती इससे पहले क्या को अजाब बढ़ाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते, क्या को ये अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, ये लगा को तुम्हारे दौलत दिया ना, इसके वजह से ये लगा गुरूर तकब्बुर में पड़ जाओ को, ये दीन को इस्लाम को ये लगा कबूल करना नहीं, तेरा दीन को सच्चा दीन को कबूल करना नहीं, ये लगा का माल दौलत को तबाह बर्बाद फरमा, और ये लगा कि तू ईमान लाने का है ना वो छीन ले बोल के बोलते मूसा अलैहिस्सलाम है। और इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। और मूसा अलैहिस्सलाम ये भी बोलते मौत तक के, जब ये लगा खुद है अपने आंखों से मौत नहीं देखते, जब तक तू ये लगा को ईमान लाने की देना ना कोई लगा को बोल को बोलते मूसा अलैहिस्सलाम है। वैसा सलाहियत खींच लेता अल्लाह ताला। जब मौत का मंजर देखता, इधर फिरौन डूब जाता है पानी में, डूब जाता इसे मालूम हो जाए अभी मैं मर गया हूं, गर्क हो जाता हूँ बोल, उस टाइम पे बोलता है क्या को मैं ईमान लाया अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो मूसा और हारून का रब है, बनी इसराइल का रब है, उस अल्लाह के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ बोल को बोलता है। कब बोलता है? समुद्र में डूब जाते वक्त, मरते वक्त बोलता है, मरते वक्त। लेकिन अल्लाह ताला का उसूल क्या है? अल्लाह ताला का भी एक कानून है, वो कानून क्या, वो मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होता, मौत से पहले पहले कितने हैं तो भी अल्लाह ताला माफ करता गुना, तौबा कबूल फरमाता। लेकिन जब मौत का वक्त आया तो मौत के वक्त अल्लाह ताला हरगिज तौबा कबूल फरमाता है। अब इन मौत के वक्त अल्लाह के ऊपर ईमान लाए को बोलता है, होने से अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल नहीं करते, इसकी ईमान को कबूल नहीं करते हैं। ईमान लाने की सलाहियत को छीन ले अल्लाह ताला, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे ना, छीन ले अल्लाह इसका सलाहियत को बोल को, होने से छीन लिया। अब उस टाइम पर बोले तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि अब ईमान लाता है क्या? इससे पहले मैं थी कितने आजमाइश में बताया, कितने मौजूदे बताए मैं मेरे मूसा के ऊपर, उतने बताने के बावजूद भी तू ईमान लाया नहीं, अब ईमान लाता है क्या? अब तेरी ईमान कबूल नहीं को बोल को बोलता अल्लाह ताला। अब तेरी ईमान कबूल नहीं, तेरी लाश को भी, तेरा डेड बॉडी रहता ना, तेरे बॉडी को भी मैं स्टोर कर रहा हूं। क्या स्टोर करना? कौन है तो तेरे बाद के जमाने वाले आते ना, वो लगा कुछ सबक हासिल करने के बाद तेरे बॉडी को ऐसा रख दूंगा बोल को बोलता अल्लाह ताला। इसका मुराद क्या होगा कहे तो अब इसके बाद इस मौके पे क्या हुआ कहे तो हबेक भी है, जब फिरौन ने ईमान लाने का बोला तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फिरौन के मुंह में मट्ठी मारते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतर को कई को वक्त तो उन बार बार वो दोहराया तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाएंगे बोल को, अल्लाह अपनी रहमत है, अल्लाह की गुस्सा अपनी रहमत है ज्यादा, गुस्सा बहुत कम है अल्लाह का, रहमत बहुत ज्यादा, रहमत जोश में आ जाओ अल्लाह की रहमत, इतना बड़ा गुनहगार तो अल्लाह कहां माफ कर डालता कि को बोल को डर हो जाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुंह इधर उसके मुंह में, फिरौन के मुंह में मट्ठी मार डालती, ईमान नहीं लाना है वो बोल को, इसकी सलाहियत पूरा छीन लेना वो बोल को। अब या अल्लाह कहीं को बोले इसका डेड बॉडी का कहे तो इसका डेड बॉडी हिफाजत कर डाला, स्टोर कर डाला अल्लाह ताला। कैसा? इसका डेड बॉडी को पानी में गर्क कर डाला कर ले तो, अब पानी में डेड बॉडी को छोड़ डाले तो वो पानी पूरा खा लेता ना, उसमें है सो मच्छर पूरे खाने को डेड बॉडी पूरा ये हो जाता ना, लेकिन उसका बॉडी को क्या भी हुआ नहीं, फिरौन को बॉडी को। और दूसरा अच्छा को बोल के इसकी बॉडी को, डेड बॉडी को निकाल को, लाश को जलाएंगे वो बोल के जलाते हैं तो जलता नहीं है, मामूल होने जलाए तो जल जाता ना, राख हो जाता ना डेड बॉडी। लेकिन इधर फिरौन का डेड बॉडी क्या भी होना नहीं, जलाते हैं तो क्या भी होना नहीं। अच्छा मट्टी में दफन करेंगे, कीड़े खा लेते ना डेड बॉडी को बोल को, मट्टी में दफन करते हैं तो भी मट्टी भी कबूल करना नहीं, पानी कबूल करना नहीं, मट्टी कबूल करना नहीं, इधर आग भी कबूल करना नहीं। इसे ये करने का उसको से अल्लाह ताला क्या करेगा, क्या बोले यार तेरी डेड बॉडी को मैं स्टोर कर रहा हूं, हिफाजत करता हूं तेरी डेड बॉडी को, ताकि आगे आने वाले कौन है तो होते कि वो लगा मेरी बात नहीं माने तो क्या करता हूं कहने का, तुझे देख को सबक हासिल करते, तेरे डेड बॉडी को मैं स्टोर कर रहा हूं बोल को बोले। ये वाक्य बहुत पहले हुआ सो, ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य मूसा के टाइम पे हुआ सो, लेकिन ये पूरा बयान कुरान मजीद में कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हुआ। वो टाइम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी सहाबा को मालूम नहीं, मिस्र में, इजिप्ट में, मिस्र में इसका डेड बॉडी है को बोल को लगा को मालूम नहीं। बाद में साइंटिस्ट कुरान को रिसर्च करते करते रिसर्च करे डेड बॉडी है नहीं को बोल को रिसर्च करे तो मिस्र में है, आज भी उसकी मौजूद है, उसकी डेड बॉडी कितने हजारों साल पहले हुआ सो उसकी लाश है, आज भी मौजूद है, आज भी इजिप्ट में, मिस्र की म्यूजियम में फिरौन का डेड बॉडी आज भी है, उसका डेड बॉडी
उसे क्या भी हुआ नहीं, उसको डेड बॉडी वैसा रख डाला अल्लाह ताला, कहीं को हम ना डराने के वास्ते। अगर हमें अल्लाह की बात नहीं माने तो उतना बड़ा फिरौन गाड़ को भी, उसके पास हुकूमत है, मालो दौलत है, रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला उसे कैसा अजाब में मुब्तला करे। वो देखो हमें अल्लाह से डरना, अल्लाह से डर को, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर मानना, उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना को बोलकर हम ना दिखाता है अल्लाह ताला। तुम्हें सबक हासिल करो, डरो मेरे अजाब से को बोलकर हम ना डराता है। आज हमें डरना, अब हमें यूट्यूब में, हमें उतने दूर है, इजिप्ट है, मिस्र नहीं जा सके तो यूट्यूब में जाओ को मारे जा, फिरौन की डेड बॉडी को बोल को मारे तो उसकी डेड बॉडी दिख जाती म्यूजियम में, क्या एक वीडियो आ जाता, यूट्यूब में जाकर हमें मारे तो फिरौन का डेड बॉडी को बोल को मारे तो उसका डेड बॉडी आ जाती। आज भी सही सलामत है। वो डेड बॉडी कब तक रहता मालूम, ऐसा चे कयामत तक रहता। कयामत तक कौन है तो आने वाला है कि वो हर एक जना भी डरता उसकी डेड बॉडी से, अल्लाह की नाफरमानी करे तो मेरे साथ क्या होता कहने का। ये पूरा मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया इंशाअल्लाह अगला वाकया इंशाअल्लाह अगले जुम्मा बयान करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अब जो बात हमारे सामने आई है, अगर इसमें गलतियां हो गई तो इसको अल्लाह ताला माफ फरमाए, और हमारे सामने जो बात भी आई इसमें कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।